آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف کے زیر اہتمام ایسٹ لندن میں 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خوان حضرات نے دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ حاضرین کی بہت بڑی تعداد اس نورانی محفل میں شریک ہوئی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ 11ویں شریف کی نسبت سے آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف کے زیر اہتمام ایسٹ لندن میں ایک نورانی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں مشہور نعت خواں سیف علی چشتی اور اویس برادران نے دربار رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ لوگوں کی کثیر تعداد اس محفل میں شریک ہوئی۔ حق خطیب حسین پیر نے پاکستان سے اسکائپ کے ذریعے حاضرین پر دم کیا اور دعا فرمائی۔ پروگرام کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اس قسم کی محافل سے نوجوان نسل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق آگاہی دلانے میں مدد ملتی ہے۔ ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت محفل 11ویں شریف کے حوالے سے منعقد کی گئی، جس میں آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت پیغام امن کا، تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے بہت خوبصورت میسج، نعت خوانی بھی کی گئی اور سیف علی چشتی صاحب ہم نے بھی ذکر پیش کیا۔ اللہ پاک یہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل یہ لندن الفرڈ میں یہ 11ویں شریف کی محفل منعقد کی گئی، اور جس محفل میں ماشاءاللہ کافی ینگسٹر نے بھی اس محفل میں حصہ لیا، اور اسی طرح سرکار کی محفلیں اللہ پاک اسی طرح کرم کرے اور سجتی رہے۔ اور خاص کر یہ اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ بالکل امن اور ہم بالکل پیسفل لوگ ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ سرکار کا اس طرح میلاد جو ہوتا رہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف کی طرف سے آج لندن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی گئی، اور میں کہتا ہوں کہ تمام بچوں کو، بڑے اور بزرگوں کو آنا چاہیے تاکہ جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان سے کنارہ کشی کی جا سکے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے کنارہ کر کے عشق مصطفیٰ حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو محفل تھی 11ویں شریف کے حوالے سے محفل تھی تو بہت مزہ آیا، ماشاءاللہ نعت خوانی ہوئی، تلاوت قرآن پاک ہوئی، اور اس محفل کا اصل مقصد یہی تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی دینی جو تعلیمات ہیں اور سنت رسول مقبول کو عام کیا جائے، گھر گھر میں پہنچایا جائے اور ہر ایک کے دل میں اجاگر کیا جائے۔ دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا انحصار عشق مصطفیٰ میں ہے۔ برطانیہ جیسے معاشرے میں جہاں نوجوان مختلف قسم کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہیں، ایسی محافل کا انعقاد بے حد ضروری ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ مسلم لیگ نون برطانیہ کے مرکزی رہنما چودھری سجاد اکرم کی جانب سے آزاد کشمیر کے وزراء چودھری رخسار، مشتاق منہاس اور چودھری عبدالعزیز کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت مسلم لیگ نون آزاد کشمیر برطانیہ کے قائم مقام صدر چودھری جہانگیر نے کی ہے۔ مزید تفصیلات صفدر بخاری کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر سے آنے والے وزراء چودھری رخسار، چودھری عبدالعزیز اور مشتاق منہاس کے اعزاز میں مسلم لیگ نون برطانیہ کی جانب سے شاندار عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر وزراء نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں ڈیولپمنٹ پروگرام اور سڑکوں کے حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہیں۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو دبا نہیں سکتا۔ کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے تحریک شروع کی تھی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ اپنے موجود مہمانوں جناب چودھری رخسار صاحب وزیر حکومت، جناب مشتاق منہاس صاحب وزیر حکومت اور جناب چودھری عزیز صاحب کو یہاں لوٹو نامت پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں برسلز میں جو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے ہمارے وزیر اعظم نے کشمیریوں کے اس پر ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھائی ہے، اور میں
हमारा मुतालबा है कि कश्मीर अक़वाम आलम कश्मीर में होने वाले मज़ालिम का नोटिस ले। मैं तीनों वज़रा का लुत्फ़ आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर के मसले में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम अपने मोअज़्ज़ज़ वज़राए कराम को लूटन कम्युनिटी की तरफ से यूके आमद पर वेलकम करते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि वो अपने इस दौरे को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं उनको उजागर करने के लिए दुनिया के सामने लाएं। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म के हवाले से भी तारीखी काम हो रहे हैं। तकरीब में नून लीग के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनकी रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। मारूफ समाजी शख्सियत महमूद खान की जानिब से कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सीनियर मुशीर चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज़ में एक इशाइये का अहतमाम किया गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके ईलिंग ब्रॉडवे के रेस्टोरेंट में मारूफ समाजी शख्सियत महमूद खान की जानिब से साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सीनियर मुशीर चौधरी मोहम्मद रियाज के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का अहतमाम किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी बरतानिया की क़ियादत समेत बैरिस्टर सबकत उल्ला कादरी, हबीब जान बलोच, मोहसिन बारी, शफकत खान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी के एजाज़ में होने वाले इस इशाइया में मुल्की सियासी सूरत हाल और नैब के हालिया कार्रवाई के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। तकरीब के शुरका का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत इस वक्त नजरबंद है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं और किसी भी तहरीक के लिए अपने चेयरमैन की कॉल के मुंतज़िर हैं। गुर्बत है, महंगाई है, लोग तंग आ गए हैं। जाहिर है कि हुकूमत को इसका करना चाहिए, नहीं कर सकती, अवाम सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन उनको लाने वाला कोई नहीं। तो इसलिए जो मुल्क की तकदीर संभालते हैं उन लोगों के ऊपर फैसला है, वो अवाम होंगे, लीडर होंगे, फौज होगी, पता नहीं कौन होगा, लेकिन मुल्क की तकदीर संभालने वालों को सोचना चाहिए। जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं मेरा ख्याल ये तो एजिटेशन क्या मुल्क के लिए बहुत खराबी की तरफ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अवामी रफ़्तार शुरू की हुई है तो ये चलती रहेगी। अगर इसका एक साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने एजेंडे से पीछे जाएगी तो कभी पीछे नहीं। देखें, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हमेशा मातिर मोहम्मद को अपना जो है वो कहा है कि जी मैं उसका बड़ा फैन हूँ, उसको फॉलो हूँ। लेकिन अगर उसकी किताब मातिर मोहम्मद की पढ़ें तो उसने कहा कि मैं अपने मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए मैंने पहले इंटरनल स्टेबिलिटी की। तो इंटरनल स्टेबिलिटी तो मुल्क में चाहता नहीं है, ये तो चाहता है पूरा पाकिस्तान अंदर हो जाए, सिर्फ एक मैं मुल्क बाहर करूँ और जो है मुल्क की जो है वो सारी बात हो नहीं सकता। आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी लीडरशिप है उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं और खुद जो है वो नैब उसने अपना जो है एक इदारा बनाया, सबऑर्डिनेट बनाया हुआ है और नैब जिस तरीके से जो है काम कर रही है। गरीब इस वक्त बहुत मसाइल का शिकार है। 15, 17, 12 हज़ार रुपये कमाने वाला इस वक्त बहुत अपसेट है। बिजली के बिल, गैस के बिल, नाने शबीना का मोहताज है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस तब्दीली को रिव्यू करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी रियाज ने कहा कि नैब की इंतकामी कार्रवाइयों से सियासतदान डरने वाले नहीं। इमरान खान कमजोर तरीन वजीर आज़म हैं और वो अवाम दुश्मन पॉलिसियों से मकबूलियत खो रहे हैं। सेथ्रोन इन्वेस्टमेंट के ज़ेर एहतमाम गवादर में बलूचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू की लॉन्चिंग तकरीब ईस्ट लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में की गई। तकरीब में बरतानिया भर से इन्वेस्टर्स और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। सेथ्रोन इन्वेस्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ग्वादर में बलूचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू की लॉन्चिंग तकरीब ईस्ट लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में की गई, जिसमें बरतानिया भर से इन्वेस्टर्स और लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। कंपनी के CEO का कहना था कि इससे पहले इनकी कंपनी गोल्ड वैली सिटी के नाम से एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी लोगों को दे चुकी है। इनका मजीद कहना था कि लोगों की पुरजोर फरमाइश थी कि कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हो जो ए कैटेगरी की हामिल हो, इसलिए आज ग्वादर में बलूचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की जा रही है, जो कि ए कैटेगरी NOC के साथ 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स जबकि 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट भी दे रही है। आज हम बलूचिस्तान ब्रॉडवे एवेन्यू को हमने लॉन्च किया है, जो स्पेशल इसकी फीचर ये है कि ए कैटेगरी NOC के साथ है। जो ए कैटेगरी NOC है ये अवेलेबल हर सोसाइटी के लिए नहीं है, वेरी सेलेक्टिव सोसाइटीज़ हैं जिनके पास ए कैटेगरी है और इसकी यूनिक लोकेशन है और हमारे competitive prices हैं। Due to previous investments, I'm quite happy with them, and I'm also doing new investments now to secure a future for my children.
And because of the previous commitments they have given me, I'm really pleased to say that I will be a future investor with them for as long as I can. میں یہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے میں نے گوادر میں. پہلے اپرچونیٹی جو تھی وہ بہت اچھی تھی. میں بڑی ہیپی ہوں اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے. اب یہ نیا جو ہے گوادر کا اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوں. میں یہاں سیترون انویسٹمنٹس میں کام کر رہی ہوں. بہت اچھی اپرچونیٹی ہے گوادر میں انویسٹ کرنے کی. ہم لنڈن بیسڈ کمپنی ہے, دوسری بھی اپرچونیٹیز لائیں گے گوادر کے علاوہ پاکستان میں, اسلام آباد, ایون ان دا UK. سو بہت گڈ اپرچونیٹی ہے ادھر UK فارن انویسٹرس کے لیے. ہم شکاگو بھی جا رہے ہیں, ٹورنٹو بھی لے کے جا رہے ہیں. آل ورلڈ وائڈ اٹ ول بی کورڈ. میں نے یہ چیز دیکھی ہے, مجھے اچھی لگی ہے, میں ادھر آیا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ انویسٹ کروں. اور کمرشل کا میرا زیادہ ہے کہ کمرشل چیزیں لوں, تو انویسٹ کرنے کو جی چاہتا ہے. گوادر ویسے بھی تو ایک اپرچونٹی ہے اور اچھی لوکیشن ہے. پہلا پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا تھا گوادر کے اندر, گولڈ ویلی سٹی. وہ ہم نے 85% بیچ دیا. تو آج ہم اس کو تھینک یو کرنے کے لیے ہم نے اپنے جو انویسٹر ہیں, جو فیملی فرینڈز ہیں, ان کو یہاں مدعو کیا گیا تھا. اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے جو انویسٹر ہیں وہ ہم سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی اپرچونیٹی لے کے آئیں جس میں کوئی سوسائٹی جو NOC اپرووڈ بھی ہو, کیونکہ پہلے ہم نے دوسرا کیا تھا. تو آج ہم نے ورلڈ وائڈ UK لندن کے اندر بلوچستان براڈ وے ایونیو جو سوسائٹی ہے A کیٹیگری والی, اس کو لانچ کیا ہے. اور اپنے انویسٹر کو آج ہم نے کیا ہے, اور یہ ہم آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. ورلڈ وائڈ ہم اس کو کریں گے. ابھی ہمارا نیکسٹ ویکینڈ پہ ہمارا ٹورنٹو کے اندر پروگرام ہے, پھر شکاگو کے اندر, اسی طرح ہم قطر اور دوسرے جو سٹی کنٹری ہیں ادھر لے کے جائیں گے. کمپنی کے CEO کا مزید کہنا تھا کہ ان کی کمپنی 15 سال سے کام کر رہی ہے اور لوگوں کا اعتماد ہی ان کی کامیابی کی ضمانت ہے. چیئرمین برٹش فرینڈز آف لیبر کے چیئرمین چودھری شوکت علی کی ساس کی برسی کے موقع پر اصال ثواب کی محفل دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں منعقد کی گئی. محفل کی صدارت مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب نے فرمائی. برطانیہ بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد اس محفل میں شریک ہوئی. تفصیلات بتا رہے ہیں سلیم صابری اپنی رپورٹ میں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہونے سے, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. چیئرمین برٹش فرینڈز آف لیبر چودھری شوکت علی کی ساس کے ایصال ثواب کے لیے ایک محفل کا انعقاد دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والٹ مسٹو میں کیا گیا, جس میں نعت خواں حضرات نے اپنی خوبصورت آواز میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا. مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی نے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ جو بھی اہل حق ہوگا وہ اہل بیت کا نام ضرور لے گا, کیونکہ فیضان ولایت اہل بیت سے ہی ہوتا ہے. یہ بیماری بڑی پرانی چلی آ رہی ہے, یہ سیاسی نعرہ ہے. جب کسی کے مقابلے میں دال نہ گلے تو یہ آسان ہے کہ اہل بیت کا نام, تو جو بھی اہل حق ہوگا اہل بیت کا نام دھڑلے سے لے گا, کبھی گھبرائے گا نہیں, کیونکہ فیضان ولایت اور اہل بیت سے ہوتا ہے, کسی دوسرے مولوی سے پیر سے نہیں ہوتا. ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلی امتوں کے ولی بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائے ہیں, اور اس امت کے ولی بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائے ہیں. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے, اس مسئلے پر مکمل معلومات رکھنا ضروری ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج دارالعلوم میں چودھری شوکت صاحب کی مدر ان لا کا ختم تھا, تو یہ محفل جو ہیں یہ ہمارے والتھمسٹو میں اکثر ہوا کرتی ہیں, تو میں ان کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں, اور تمام دوست احباب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور قبلہ مفکر اسلام نے دعا فرمائی ہے. پیر عبد القادر جیلانی صاحب کی موجودگی میں محفل ہوئی, بہت مزہ آیا, اور تلاوت قرآن پاک اور ثنا خوان حضرات نے نعتیں بھی پڑھی, اور الحمدللہ بہت ہی روحانی محفل تھی, بہت دلی سکون ملا. تو ہماری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول و مقبول. اس محفل میں آج شرکت کی, اور بھرپور جناب پیر صاحب پیر عبد القادر شاہ صاحب آپ کے آستانے پہ اس محفل کا انعقاد کیا گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس محفل کی
सदक़े जो है मरहूमा के जो है वो दर्जात बुलंद फरमाए। सारे मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के बड़े अजीम नाम और ख़ासकर दारुल क़ादिर जिलानिया से मुतल्लिक़ इस सारे ख़ानदान की बड़ी खिदमत हैं। चौधरी लियाकत साहब कादरी, चौधरी शौकत साहब कादरी, चौधरी हनीफ साहब कादरी, चौधरी तारिक महमूद साहब कादरी, ये सारे साथी इनकी आज जो सात सभा का ख़त्म था उसमें हाज़िर हुए हैं। वो बड़ी माई साहब भी बड़ी नेक थी, ये ख़ानदान भी बड़ा नेक है, दीनी मामलात में हर लिहाज से बढ़ चढ़ कर खिदमत करते हैं। जब हमने ईसाल सवाब की महफ़िल रखी, हमारी मदर इन लोगों की साल हो गया उनको, तो माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से हमने ईसाल सवाब की महफ़िल आज सजाई है और आज हमने 510 कुरान ख़त्म किए हैं। मैं समझता हूँ ये चीज़ें काम देती हैं। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, वो प्यार मोहब्बत बांटते थे। इसी तरह आज महफ़िल हुई है, रूहानी महफ़िल हुई है और उनकी सहेलियों को हमने इकट्ठा किया है और बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो मैं समझता हूँ वेरी पॉजिटिव, आज यंगस्टरों को भी अच्छा मैसेज गया है, जो भी आज मैसेज यहाँ पे रिले हुआ है। खत्म नबूवत के मसले पर पहले ही इजमा हुआ है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की वाशिंगटन में पाकिस्तान हाउस आमद के मौके पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सैकड़ों की तादाद में कारकुनों ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए उनके हक में नारेबाजी की है। मज़ीद जानते हैं वाशिंगटन में नुमाइंदा 92 न्यूज़ खुर्रम शहजाद से, जो इस वक्त पाकिस्तान हाउस के बाहर मौजूद हैं। खुर्रम, बताइएगा कैसा जोश व जज्बा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वो एम्बेसडर हाउस, जहाँ जिसको पाकिस्तान हाउस का नाम दिया जाता है, वहाँ पे मौजूद हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान जहाँ पे क़याम करेंगे वो वहाँ पे मौजूद होंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में जो उनके जियाले हैं, जो उनके जुनूनी हैं, उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। 100 गाड़ियों का काफ़िला भी यहाँ पे आया जिन्होंने उसका इस्तकबाल किया। डोल की थाप पे उनका इस्तकबाल किया गया। इस तरह का तारीख़ी इस्तकबाल पहले देखने में नहीं आया पिछले 30-40 साल में। तो काफ़ी यहाँ पर जोशो खरोश पाया जाता है। पूरे अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने आके कल का जो जलसा है जिसके अंदर प्रेडिक्शन की जा रही है कि 20,000 से ज़्यादा अफराद होंगे। कुछ जो यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं उनका यह कहना है कि 30 से 35,000 अफराद यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने सिर्फ 15,000 अफराद अलाउ करने हैं। तो जितने अफराद अंदर होंगे हाल के अंदर, उसी उतने ही तादाद में लोग बाहर भी मौजूद हो सकते हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट पाई जा रही है। और जो सबसे अहम चीज़ है, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो मुलाकातें हैं, जो जिसके ट्रंप है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनके साथ मुलाकात है, पम्पियो के साथ मुलाकात है, जो फाइनेंशियल और ट्रेड के जो यहाँ पे मुलाकातें होंगी वो काफ़ी यहाँ पे उनको काफ़ी हाइप दी जा रही है। समझा ये जा रहा है कि ये पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नया आगाज़ होगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी का जोशो खरोश उरूज पर PTI टाइगर्स ने वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका को तारीख़ी करार दिया है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप भी देखिए। बहुत एक्साइटेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान साहब की इस कदर इज्जत है दुनिया में। We are here to support our PM and to show the strength of Pakistani American community, how together we are. We are here as a nation and show Trump and administration that how powerful our PM is and he is going to change Pakistan. It's a dream come true. Today is the time that, you know, like every Pakistani in North America, they were waiting for our beloved Prime Minister Imran Khan and hope, you know, like he is the only and solution for the prosperity of Pakistan. ऐसे लगता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, अमेरिका में हम ईद मना रहे हैं, जैसे ईद का सामान है, जश्न हो रहा है। सारी दुनिया इधर पे अपने प्यारे लीडर का इंतजार कर रही है। कल इंशाल्लाह 20 से 30,000 लोग होंगे। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हम आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाएगा। हम बहुत एक्साइटेड हैं अपने कायद से मिलने के लिए। PM इमरान खान जिंदाबाद, वी वेलकम हिम फ्रॉम वाशिंगटन DC। माहौल, पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो कनाडा, अमेरिका, पूरे नॉर्थ अमेरिका में रह रही है, यहाँ पहुँची हुई है। कल बहुत ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। आज खान साहब के आने का सबको नहीं मालूम था, लेकिन कल के इवेंट के लिए 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं कल जो उन्होंने स्पीच करनी है। लोग एक्साइटेड हैं। ये पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप की एक नई इब्तिदा है, जो भी हमारे लिए खुशी का बायस है। ये हम नहीं हैं जिनकी वजह से लोग आ रहे हैं, ये खान साहब की वजह से आज यहाँ पे। और आपने देखा एंथुसियाज्म, कितना जोश है लोगों में। लोग रीच आउट करना चाह रहे हैं,
फ़र्क क्या है इस दफ़ा के आगे खान साहब आते थे, सबसे मिलते थे, इस दफ़ा ही इज़ कमिंग एज प्राइम मिनिस्टर, तो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इसलिए आपने देखा कि हर कोई चाहता है कि उनसे हाथ मिलाए, उनसे मिले। इंशाल्लाह कल के जलसे में वो सामने बैठेंगे, सब लोग उन्हें देख भी सकेंगे और तकरीर भी वो मुझे उम्मीद है कि ऐसी करेंगे कि लोगों को एक ज़िंदगी भर हम सबको याद रहेगा कि हमारा वज़ीर आज़म आया था और उसने अमेरिका में आके हम सब के दिलों को छू लिया। वो देख रहे हैं कि आज सख्त गर्मी में लोग, हालांकि सीक्रेट सर्विस और सारा हेलीकॉप्टर आपने देखा, मोटरकेड देखा, इसके बावजूद यहाँ लोग खड़े हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब लोग इस दिल से, उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो खान साहब की एक झलक देख पाएँ। हम जिस नहज पे दुनिया के वक्त मौजूद है, हमें चाहिए कि हम तमाम पाकिस्तानी अपने वज़ीर आज़म का पुरजोश और पुरअमन मुजाहरा करें और दुनिया को बता दें कि हम पठान नहीं, हम पंजाबी नहीं, हम बलोची नहीं, हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी एक्साइटमेंट है, जब से हमने सुना कि इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट वहाँ से, मैं तो इनको बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। When I was a small kid, I used to play cricket, and तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरा रोल मॉडल है। एंड ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है कि जब मैंने अब इमरान खान को मेरे सामने देखा तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं इस कारवां में शामिल था जब मैंने इमरान को रिसीव किया डलस एयरपोर्ट से। हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आपको बता नहीं सकती। खुदा ने बहुत अरसे के बाद हमें एक काबिल लीडर दिया है और ऑनेस्ट लीडर दिया है। हम चाहते हैं कि ये इसका इस्तकबाल कल हम इस तरह करें कि अपनी आंखें बिछा दें। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मेरा दिल करता है अपनी आंखें, अपना दिल, सब कुछ बिछा दूँ उनके लिए। और मैं बहुत खुश हूँ और कल के दिन का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। मैं चाहती हूँ कि कल बस मैं उनको देखूँ और मैं नारे लगाऊँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं, यहाँ जलसा हो रहा है, तो मैंने इतनी एक्साइटमेंट और इतने लोग कभी पाकिस्तानी इकट्ठे होते हुए नहीं देखे। मैं पिछले 2 हफ्ते से बैक एंड फोर्थ आ रही हूँ और लोग इतने एक्साइटेड हैं। मैंने देखा है कि लोग डिफरेंट स्टेट से यहाँ पहुँचे हुए, इतना ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी स्पीच सुनने में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत ज़्यादा दूर दूर से आए हैं, और मैं ये जितने भी देखने वाले हैं मैं उन सबसे कहूँगी प्लीज़ आप लोग अपने घरों से निकलें और आके यहाँ पे इमरान खान का वेलकम करें, बिकॉज दैट्स आवर हीरो and we are all Pakistani and we have to do get together and we have to like यहाँ पे आके हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पे मैं बहुत से लोग देख रही हूँ कि बहुत दूर दूर से आए हैं और डिफरेंट स्टेट से आए हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम एंड मैं खुद भी बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे किसी जगह पे आई हूँ और मैं इमरान खान के लिए आई हूँ। कितना जोश और कितना वलवला नज़र आ रहा है पाकिस्तानी अमेरिकन्स में, और ये जोश और वलवला जो मैं देख रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोगों को, मुझे जो नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो बाहर लोगों खड़े होंगे और वो देखेंगे। उन लोगों के लिए हम लोगों ने स्क्रीन्स का भी बंदोबस्त किया है ताकि वो मिस ना करें। अकॉर्डिंग टू नंबर्स, जो अभी तक नंबर्स हमें मिल चुके हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, हम लोग 22,000 को क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, ये इमरान खान का पहला ऑफिशियल ट्रिप है एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो मैं इसको एक हिस्टोरिकल इवेंट देख रही हूँ। कराची के मुकामी होटल में थाई एशिया की 3 रोज़ा नुमाइश सज गई, जहां 50 से ज़ायद कंपनीज ने अपने स्टॉल लगाए। इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक आइटम्स और फुटवेयर शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। नुमाइश का अहवाल बता रही हैं सबा नूर। दिलकश इंटीरियर डेकोरेशन पीस और खूबसूरत फैंसी लाइट्स, फूड, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन की पूरी रेंज और भी बहुत कुछ। कराची में मकामी होटल में टॉप थाई ब्रांड्स 2019 के नाम से नुमाइश शुरू हो गई, जिसे ख्वातीन की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है क्योंकि यहाँ ख्वातीन की मनपसंद अशिया दस्तयाब है और वो भी मार्केट से कम दाम पर। इट्स सो ग्रेट लाइक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्सपो सेंटर में भी होता है लेकिन ये बहुत अच्छी है, लाइक इट्स सो फ्रेंडली एंड सो फैमिली कंफर्टेबल। लाइक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ये कि काफ़ी अवेयरनेस हो जाती है, थाई की प्रोडक्ट्स भी यहाँ आ जाती हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है कि हम लोगों को थाई के ब्रांड मतलब डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, मेकअप से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। अच्छा लगा है, अच्छी एग्जीबिशन है लेकिन चीज़ें कम हैं। जैसे कि हम सोच रहे थे कि थाई गारमेंट्स वगैरह होंगे और चीज़ें, कॉस्मेटिक्स पे ज़्यादा जोर है,
लेकिन ये कि बेहतर है, अच्छी है। मुंतजमीन का कहना है कि नुमाइश से पाक थाई ताल्लुकात और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। नुमाइश में 50 से ज़ायद थाई कंपनीज शरीक हैं और गैर मुल्की मसनूआत का ये मेला 22 जुलाई तक जारी रहेगा। तिजारती सरगर्मियों के लिए लगाई गई बैनुल-अक़वामी सतह की ये नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जो आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ सबनूर, 92 न्यूज़ कराची। 92 न्यूज़ यूके से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।